Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. We're doing the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I think so often than not, when you're teaching or you're studying, you're so sort of obsessed with what is to come now in terms of the story that you sort of miss on who is it that you're reading about, right? And what is the significance of the man that you're reading about. And I think that speaks about the state of my heart. I was saying to Abdullah that I'm really ill prepared for the class, which causes its own stress. Add to the fact that there's a camera here as well, वरना आप बच्चों को तो हम बातों से फेर ही लेते हैं, ठीक है? Yeah, चलो, you have no choice but to listen to us because it's a class. So it's a hadith that just, I don't know where it came to me, and I think if those of you using the text has it. So, Jabir bin Abdullah riwayat karte hain that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, listen to this, right? The Prophet sallallahu alaihi wasallam was never asked of something to which he said no, right? And then Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu was saying that, I read this, it just came to me again, right? A man came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asking for something, and the Prophet said that, I do not have anything right now, but go and get something, जाकर कुछ ले लो उधार पे, on my name, and I will pay for it whenever I have sufficient money, right? And Umar radiallahu ta'ala anhu said to the Prophet, because he was sitting there, that Ya Rasulullah, you already gave him whatever you could have given him, and Allah did not make you responsible, for doing that which is beyond your means, which is a very rational thing to say. And the Prophet did not like what Umar had said, so and he kept quiet, but you could tell. And a man from the Ansar stood up and said, Ya Rasulullah, spend whatever you want and do not fear any diminution from the Lord of the throne, right? I will stand behind you. And the Prophet ﷺ smiled, and they say that the happiness could be seen on his face, right? And he said, with this I have been commanded, right? And it just makes you realize what a man he was, right? And by the way, who would you find कि कोई आपसे मांगने आया है, we sort of give an excuse to people today कि यार वो टूटे हुए पैसे नहीं है, ये almost being happy कि शुक्र है नहीं है. And here he is, he literally had nothing to himself at that point in time, right? And he's saying that, फलां बंदे के पास अगर आप चले जाओ ना, तो just take my name and set up an udhar and I will come back and pay. Right? So alhamdulillah, it's such an honor to be from the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Such an honor to sort of read about him, know about him, try and sort of go over his story. And may Allah really give us the tawfiq कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे वाकई अमल कर सकें, ठीक है? So the last thing that we had sort of done in terms of the major events in the Madani Seerah of Rasulullah was the Battle of Trench, which had been followed by the difficult siege of Banu Qurayza, and then they being expelled out of Madina Munawwara. And all of this, I said to you, lasted a couple of months, right? Now shortly after the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala reveals to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as you famously know, in a dream, that he is essentially leading the group of Muslims in Umrah, right? He is sort of, doing Umrah, he is taking them to Makkah Mukarramah. And as we all know that, this is one of our beliefs, हमारा ये अकीदा है कि जो अम्बिया के ख्वाब हैं वो क्या होते हैं, they are not just dreams like we have, they are divine revelations actually, and they are some things that have to do with the truth, right? So this vision is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam basically recalls to the Sahaba the next day, and the message is clear that we are going to convert this into a reality. Now understand, the Sahaba, particularly the Makki Sahaba, who have been away from Makkah Mukarramah for the longest period of time, because this is the 6th year now that they're away from their homes, they're away from Baytullah, and they're away from their families even in that sense, right? अब उनको एक बिशारत मिल रही है कि हमारे नबी ने ये देखा है और कह दिया है कि we're going for Umrah, right? And and they start preparing. So any and everybody who can prepare starts to prepare, and what you have essentially is that about they say there are different numbers, ठीक है? कोई लोग कहते हैं 1400-1500 लोग हैं, कुछ कहते हैं 1000 के करीब है, but there's a significant number of people essentially they join Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this supposed journey for Umrah, right? And by the way, you also have to understand, this is interesting, and I mean we all also have to understand
what is the strength of the Muslims at this point in time in Madinah Munawwara? You know, trench se andaza lagaye na. What is the amount of warriors that you had in trench? No, trench mein to that's the Quraysh, right? 3,000, right? उस पे subtract the munafiqeen, right? So आप कह रहे हो तो कम हो भाई 2,500 बंदा तो है ही है ना, ठीक है? You have about 2,500 people, right? If we have a 1,500 of them going, so you can almost say that, and इसमें obviously औरतें बच्चे भी added हैं. Some amount of women who are also going. Mostly are men, but there are women who are traveling, right? The Prophet's wives are also there. At least one, Salama is there, right? So half the people are not going, right? Why would you miss Umrah with the Prophet? So question, right? Why would somebody miss the opportunity to do Umrah with Rasulullah, right? So a lot of reasons for that. One reason, one, by the way, you have to understand is that is how practical life looks like, right? You know, these are the best of people. Not everybody can make it all the time to every journey, right? And our job is to push. And you know, there is, by the way, it's not the Prophet pushed actually. Okay? Hassan would not agree, okay? But you know, our job is to push. But you know, realistically, there will be people who might have reasons, right? So amongst them, there are some people जो आप कहेंगे मुनाफिकीन है और वो नहीं आए. But amongst others, there are people who are going to be of an old age, take care, and they were not fit for traveling, right? And that's one reason that you find out that people did not travel. Second would also be another category of people जो actually अपने किसी genuine उज़र जिसमें से काम, कारोबार या कोई चीज़ जो है वो थी उसकी वजह से नहीं आए. Third, you have to understand, you don't find it, but you can almost infer, ये नहीं हो सकता था कि यार मदीना मुनव्वरा खाली हो जाए. It just could not happen, right? You know, somebody had to be back in Medina representing the Muslims, and you know, the Prophet is the head of the state as well, right? यानी मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को आज उम्रे पे बुलाया जाता है, ठीक है, सऊदी कहती है पूरी पाकिस्तान की हुकूमत आ जाए, तो पूरी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं जा सकती ना, जितनी भी हमें बुरी लगे, करप्ट लगे. You will leave some people behind, some people to protect the city, some people to govern the city, somebody is an imam, somebody is somebody else, right? So that's also another aspect of it. So everybody had a choice, but then some people were appointed with certain notions as well, right? And lastly, I mean, amongst other reasons, you will also find कि कुछ लोग इसलिए भी नहीं गए कि उम्रे पे जाने का जो जज्बा था, and not to sort of से वो मुहाजिरून में ज़्यादा था और अंसार में relatively कम था. अच्छा, ये दीन का जज्बे की कमी की फ़र्क नहीं थी. But you know, for the muhajirin, it had been a very long time. Makkah Mukarramah was also their home, right? They had missed the place since the longest time because वो 5-6 साल से नहीं जा सके थे. So hence you had more of them willing to go, right? And lastly, I mean, one more thing, because the Quran actually speaks about that as well, that some of them essentially also were lazy, right? कि उनमें से कुछ लोग जो है ना, यानी सफ़र की मशक्क़त and the uncertainty, because I don't know, I mean, I heard Sami Hamdi say this as well, and I think, you know, if, you know, would you not agree that if you make political media statements against a particular state in today's day and age, okay, if you stand on activism for somebody or something in this day and age, and then आपको उस मुल्क जाना पड़े, ठीक है, और आपको पता है कि, you know, कि आप काफ़ी मशहूर हैं, तो यू वुड फियर द फैक्ट कि आपके साथ बॉर्डर में क्या होगा और क्या नहीं होगा. तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है ना कि आपको पता है कि यार, एंड आपको ये, सो अंडरस्टैंड दैट हम ये तो सोच रहे हैं कि मुसलमान उम्रे पर जा रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू अ सिटी कि जहाँ के लोग पिछले 5 सालों में 3 जंगें कर चुके हैं आपको ख़त्म करने के लिए. यू आर गोइंग टू द लैंड ऑफ द एनिमी, राइट? And you know, you're going in the sacred months, which we'll speak about, but you know they have no war, they have no ethics. They will stoop down to any point to sort of finish you off, right? So that's why when this journey begins, तो पहली argument ये हो जाती है कि साद बिन उबादा, who was one of the tribal heads of the Ansar, उनका opinion ये है कि Rasulullah, you know, the Prophet said, we're going for Umrah, but we have to have weapons. It can't be, you know, you're taking 1,500 men, अगर हम हथियार ना लेके गए ना, this is not safe, right? And the Prophet is of the opinion, we're not taking any weapons, right? Except for those ceremonial जो weapons होते हैं, right? That's it. And the Prophet's opinion prevails, right? But the reason that Saad is saying that is because he understands the threat, right? कि you know, we're going with an intent of khair, हम अपने साथ हम ihram बांध के जा रहे हैं, तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेके जा रहे हैं, but how do you sort of, you know,
avoid the danger, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam is doing tawakkul. And obviously he's doing it because Allah subhanahu wa ta'ala has divinely inspired him, ठीक है, in one context or the other, ठीक है. So एक तो ये चीज़ है. By the way, have you ever thought of the fact, why is it that the Prophet sallallahu alaihi wasallam took animals, right, to sort of, उम्रे में कौन सा जानवर होता है, हाँ, दम के लिए लेके गए थे? आपको लगता है कि अगर साबुन से हाथ धो लें, यू रियली थिंक कि अगर साबुन से हाथ धो लें, वो परफ्यूम लगा लें गलती से, अलबैग खा लें? You've gone for Umrah, right? We don't take animals, and we don't slaughter animals over there as well. Right? Why was the Prophet taking animals? Symbolic था या what else? Travel means sacrifice. ये animals गए sacrifice के लिए थे. No. I mean, you know, you get to the end of it कि जब नहीं होता उम्रा तो फिर सर मुंडाते हैं और जानवरों को ज़िबा करते हैं. शुक्राना. So if you read the detail of it, what you find essentially in one sense is what कि उस वक्त जो है ना, जब भी बैतुल्लाह आते थे तो it was like a custom, right? It was like a custom that had not been clarified, because Umrah and Hajj in its true form and shakl are going to be revealed at the end, right? कि कहाँ, because Hajj के साथ फिर उम्रा होता है ना, तो उस ज़माने का उर्फ ये था कि जब आप उम्रे के लिए आ रहे होते थे तो people who could sacrifice, ठीक है, animals for the poor people of Makkah Mukarrama, they would bring those animals with them. And ये आप समझो कि as a sign भी लिया जाता था कि you know कि हम आ ही खैर के इरादे से रहे हैं. तो वो जानवर जैसे कहते हैं ना, एक आपका एहराम पहनना, ठीक है, यानी आपके साथ हथियार ना होना, और आपका कुर्बानी का जानवर लेकर जाना, ये तीन निशानियाँ होती थी कि ये शख्स जो है ना, ये हरम खैर के इरादे से आ रहा है, ठीक है. और एक बात याद रखें, बाय द वे, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वन कुड आर्ग्यू विद दिस, कि ये तो लार्जर ग्रुप था और इनसे थ्रेट था, बट पीपल वुड कम टू बैतुल्लाह अदर देन हज इज़ वेल फॉर दिस इज़ वेल. लाइक इतना नहीं था, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं आते थे, वो नहीं आते थे, बट कुरैश का ये कस्टम था कि वो किसी को बैतुल्लाह आने से रोक सकते थे, ठीक है ना, यानी वो किसी भी ग्राउंड्स पे काबा आने से नहीं सकते थे. इट वाज समथिंग दैट दे रियलाइज कि दिस वाज द लैंड, दिस वाज द सेक्रेड लैंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड अगर कोई इस इरादे से आ रहा है ना, देयर इज नो वे यू कैन स्टॉप दीज पीपल, राइट. एंड सो you have to understand it in modern context, ठीक है, this notion of stopping people, which at times does happen in one sense or the other, कभी जो है ना, हम उसको इंतज़ामी उमूर तो कहते हैं, not always is this correct in the manner it is done to people, right, in one sense or the other, right. So खैर, so ये एक चीज़ थी. और अभी आप बाद में देखोगे कि इस पे बहुत तनकीद भी मिलती है कुरैश को न्यूट्रल्स की तरफ से, यानी जब तक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नहीं हो रही ना और मुसलमानों को रोका रखा जाएगा, तो एक्चुअली एक मेजर क्रिटिसिज्म उस वक्त होना शुरू हो जाता है कि व्हाट आर द कुरैश डूइंग. एंड कुरैश में एक इंटरनल भी रिफ्ट शुरू हो जाती है कि यू नो, व्हेन यू हैव रियलाइज्ड कि दीज पीपल हैव कम विद खैर, दे हैव कम विद अ गुड इरादा, व्हाई आर यू स्टॉपिंग दीज पीपल, लेट देम इन, राइट. यू नो कि ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हमारे कस्टम के खिलाफ है, राइट, कि हम एक ऐसे ग्रुप को जो है ना, बट व्हाई वर दे स्टॉपिंग देम, इट वाज अ इशू ऑफ ईगो नाउ, राइट, कि नहीं आने देंगे, एक जिद पकड़ लेगी. सो खैर ये जो है एक पार्ट था. नाउ बिफोर आई सॉर्ट ऑफ गेट इनटू हुदैबिया and the exact whereabouts of how this happened, you know, what is fascinating about this story is, let's see what the life and the story of the Prophet looks like up till this point. So you've come down to Medina, and अभी तक क्या हो रहा है कि इसको कहते हैं ना उर्दू में यक्के बाद दीगरे, like one after the other, battle upon battle is being thrown your way, and these battles are hard. You're losing men, ठीक है, it's testing you. However, you come out victorious. And obviously, in the past 5 years, Islam has radically changed for the man that the Prophet is now as well, right? And particularly the victory at the Battle of Confederates, यानी ग़ज़वा अहज़ाब की जो फतह है ना, वो अरेबियन पेनिनसुला में एक अलग किस्म का मैसेज छोड़ती, राइट. सो एक वो साइड है. बट अब सवाल ये है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से इस विक्ट्री को बिल्ड करके ना एक्सपोनेंशियली इस्लाम को ग्रो करना. आप समझो कि वो सारी ग्रोथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस एक साल में करवाएंगे, ठीक है, और वो करवाते अल्लाह इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हैं कि इस सारे में कोई यू कैन आर्ग्यू प्लानिंग नहीं, राइट. अब आप देखें, अब अगेन बिकॉज हमें एंड पता है तो हमें समझ आ रही है, बट वही के ज़रिए से रसूलुल्लाह को इंस्पायर किया जा रहा है कि आपने उम्रा करना है,
सब उम्रे का मकसद तो कुल इबादत है, बैतुल्लाह को जाना है, मकसद ये है कि आज भी जब हम जाते हैं इसी नीयत से जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि इस साल उम्रा होगा नहीं, ठीक है, हमें पता ही नहीं उस उम्रे में एक ऐसी ट्रीटी साइन होगी, ठीक है, कि जिस ट्रीटी के बारे में आप ये कह रहे हो कि यार इसमें क्या ही अच्छा है, और आपको यही नहीं पता, और उस ट्रीटी की वापसी पे आपके अपने सहाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार ये व्हाट डिड वी डू, राइट, इट रियली वाज नॉट द नीड, बिकॉज द सहाबा आर थिंकिंग अभी तो हम ग़ज़वा अहज़ाब जीत कर आए हैं, हमें क्यों ये साइन करनी पड़ी। अच्छा, ट्रीटी का साइन होना इतना अजीब है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इट हैज़ कुरैश का कोई इरादा नहीं था ट्रीटी साइन करने का भी। कुरैश ट्रीटी साइन करने के लिए क्यों भेजते हैं, बिकॉज जब हज़रत उस्मान सिर्फ डिले हो जाते हैं वापस आने में, एंड मुसलमानों को ये खबर पहुंच जाती है कि उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो वहाँ मुसलमान सीरियस हो जाते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अब हम वादा कर रहे हैं कि अब ये मामला जो है ना ये ख़राब हो गया, इसको हम ठीक नहीं होने देंगे, नहीं इसको हम ये नहीं छोड़ेंगे नहीं ऐसे। एंड वो कुरैश को परेशान करता है कि दे मीन बिजनेस, वी हैव टू गो एंड नेगोशिएट विद देम नाउ, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स, राइट, एंड अंडरस्टैंड कि द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया is single-handedly the reason that Makkah is going to fall, right? अब and it shows to you कि पता है, जब मैं आपको आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझाता हूँ कि जब हम एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना दीन के लिए, एक हमारी अपनी जर्नीज़ है, तो एक पार्ट वो है इस जर्नी का जिसको हम प्लान करते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि यार ये फ़तह है। सो फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए एक फ़तह ये है कि यार हमने इल्म शुरू किया था, 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले, इट्स अ सक्सेस कि वन आफ्टर द अदर मेरा साल कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह 4 साल में, ये सब चीज़ें। बट आपको रियलाइज़ करना है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको नहीं पता क्यों आई। कभी कभी उसमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। हुदैबिया सहाबा के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, राइट, बट अल्लाह को वो पता है जो आपको नहीं पता, अल्लाह वो देख रहे हैं नहीं देख रहे, राइट। एंड अगर इंसान का तवक्कुल और उसके साथ साथ इत्तिबा उधर ही रहे, सहाबा का दिल ख़राब था बट सहाबा ने इत्तिबा नहीं छोड़ी, तो फिर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला इवेंचुअली दिखाते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे, राइट, एंड देयर यू गो, राइट। सो आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, नॉट टू कि व्हेन आई लुक बैक एट जस्ट दिस नोशन के लाइक दीन के काम करने में एक चीज़ ये है कि BNU जाके इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए वो स्टार्ट इस तरह था कि PhD करने जाना एंड मास्टर्स में अप्लाई करें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की डिग्री है, और मुझे पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी होती क्या भला है, बस टोटल ये पता है कि इकोनॉमी का लफ्ज़ इकोनॉमिक्स से मिलता है, तो ये कर लेते हैं क्योंकि पिछला मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, एंड वो डिग्री किसी और चीज़ में निकलती है वहाँ जाके, और सही परेशानी होती है, और वापस आके रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये डिग्री इस चीज़ में थी जिसको सोशल साइंसेज में माना जाता है, एंड उस वजह से BNU मुझे हायर करता है, ठीक है, और आज तक तड़प रहे। So literally Allah had a plan that I did not actually think of. I did not have any idea कि होगा. I hope Allah accepts it, whatever has come out of it. But at times you don't know what's going to happen to you. You're not even thinking of something, and if Allah chooses you, or if Allah accepts something from you, it's just beautiful. And I think the notion in that is to persevere, is to keep trying, right? And you'll see that the Sahaba are tested in the Battle of Hudaybiyah. Sorry, in the Treaty of Hudaybiyah in a different manner. I said the battle, so the Sahaba would call it Ghazwa Hudaybiyah. ठीक है, सहाबा कराम आपस में इसको ग़ज़वा हुदैबिया कहते थे, क्योंकि हालांकि कोई फाइटिंग नहीं हुई थी, बट फॉर देम दिस इज़ हाउ इट वाज। ओके, सो नाउ लेट्स सॉर्ट ऑफ डू दिस वेरी क्विकली। मुसलमान जो हैं वो निकलने का इरादा करते हैं। वंस दे सॉर्ट ऑफ सेट दैट राइट कि हम उम्रे के सफ़र पर जा रहे हैं, सो दे ब्रिंग इन देयर सैक्रिफिशियल एनिमल्स, जो उनकी सवारियाँ हैं वो भी लेकर आते हैं, and they leave from Medina Munawwara. And those of you who've gone there should know this, and you should remember this when you go. So they leave from Medina Munawwara, and थोड़ा ही मुसाफत के चलने के बाद, almost you say I think 10-15 kilometers, right, from Medina Munawwara, ठीक है, so they reach a place called Zul Hulaifa, ठीक है, Zul Hulaifa, which is the मीकात, ठीक है, जो कि मदीना मुनव्वरा की साइड से मीकात बनता है। तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ क़याम करते हैं, वहाँ जो है ना अपनी चादरें बांधते हैं, ihram की नियत करते हैं, एंड उसी जगह पर आज भी जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं जो उम्रा करने जाते हैं वहीं से वो बांधते हैं। इसको बीर अली भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बीर अली भी कहते हैं इस जगह को। बाय द वे, फॉर दोज हु डू नॉट नो, एज वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, द मीकात इज़ अ बाउंड्री, ठीक है, अराउंड
मक्का मुकर्रम अराउंड द हरम, ठीक है, इट्स अ मच वाइडर बाउंड्री, ठीक है। 5 मीकात हैं ग्लोबली, डिपेंडिंग आप दुनिया में कहाँ से आ रहे हैं तो आपको कोई एक मीकात लगता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम मदीना, ठीक है, टू मक्का, यानी आपकी फ़्लाइट पहले मदीना की थी, फिर आप जा रहे हो तो देन ज़ुल्हुलैफ़ा इज़ योर मीकात। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, यानी पाकिस्तान जिस मुल्क साइड पे अगर आप उधर से आ रहे हैं, दुबई की फ़्लाइट हो, कतर से फ़्लाइट हो, जो भी हो, ठीक है, देन योर मीकात इज़ यलमलम, विच इज़ 30 मिनट्स अवे फ्रॉम बेसिकली योर लैंडिंग टाइम। सो अगेन वो मुसाफत तकरीबन उतनी ही बनती है, ठीक है। और मीकात निकला है एक्चुअली वक्त से, ठीक है। सो इट एक्चुअली इज़, मीकात इज़ लाइक अ यूनाइटिंग पॉइंट. It's like, you know, the symbolic understanding of this is beautiful, that any and everybody who goes to the house of Allah, ठीक है, goes in one shape, goes in one form. And that's why, you know, from this perspective, the original Hanafi fatwa made a lot of sense, right? Because the Hanafis would say, and I know it's sort of, you know, they would say no matter who you are, where you're coming from, why you're coming, if you're going to cross the miqat, you have to wear the ihram, period. You will go and do umrah first, and then you will sort of do whatever you have to do. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। So, you know, इतने भी इमाम साहब बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है। There is reason for that. However, obviously, modern day traveling has, the other Aimma think differently, and I mean, even the Hanafis have now departed from it, some of them, because अब तो Saudi government भी आपको flights ऐसे कर रही होती है। The point of that is essentially, it was always in honor of the haram, right? It was always there so that, you know, people would understand the essence, the sanctity of the haram, ke this is how Allah wants it to be. And again, you know, like you see in namaz, कि Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be humbled in a particular sense, right? कि एक ही सफ़ में महमूद और रियाज को खड़ा किया जाता है, इसलिए आप जो भी हैं, आप जब बैतुल्लाह दाखिल हो रहे हैं, आपको एक ही तरीके से आना है। तो अब यहाँ पहली मर्तबा ये होने लगा है कि हमारे नबी, ठीक है, और तमाम सहाबा जो है ना, उस सफ़ेद लिबास को ओढ़ने लगे हैं अपने ऊपर, ठीक है, और वो तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, क्या कहते हैं, घर में जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। एंड यू नो, आप सोचो कि यार क्या जज्बा होगा है कि सहाबा कराम का लश्कर है, रसूलुल्लाह उसके अमीर हैं, राइट, एंड आपने इतनी मुशक्क़त झेली है और फाइनली यू आर गोइंग टू गेट टू सी वो। एंड दोज़ ऑफ यू हैव गॉन फॉर उम्रा, तो उम्रे की जर्नी इतनी हमें रेडिकली ट्रांसफॉर्म करती है, राइट, हर एतबार से। एंड आप सोचें कि कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि इनको नहीं आने दिया जाएगा, राइट। और ये जो हम कह रहे होते हैं ना, हम तो उम्रे के हर ट्रिप पे ग्रुप पे कह रहा होता हूँ कि नो मैटर हु यू आर, व्हाट पैकेज यू हैव, उम्रे के सफ़र में मुशक्क़त है, वो यहाँ से शुरू हुई थी। यानी जितनी मुशक्क़त इनको झेलनी पड़ेगी ना, आप देखिए ना, क्योंकि अभी आप जो कुछ अब आप इवेंट सुनोगे ना, मैं क्यों कर रहा था, आपको ये याद रखना है कि सहाबा एहराम की हालत में, तो एहराम की एक वैसे ही अपनी ना टेंशन होती है, ठीक है। यानी बैत रिज़वान एहराम की हालत में हो रहा है, वो सारी नेगोशिएशन एहराम की हालत में हो रही है, ठीक है, वो सारी आर्ग्यूमेंटेशन, इवन एम्बुश होता है बीच में, ठीक है, यानी 80 लोग आ जाते हैं मुसलमान, उनको जो है ना, क्या कहते हैं, बगैर मारे जो है ना, वो एक लड़ाई करके उससे जान छुड़वाते हैं, सब एहराम की हालत में हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो टोटल ये परेशानी होती है कि फ़्लाइट 2 घंटे डिले होगी यार, वो एहराम की हालत में जो है ना, मेरा OCD ट्रिगर हो गया कि अब मैं जो है ज़्यादा देर जो है ना, क्या कहते हैं, डिओड्रेंट के बगैर रहना पड़ गया, ठीक है। ये टोटल हमारी परेशानी है आज, एंड ये सब कर ही एहराम की हालत में रहे, राइट। सो कहने का मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना इन चीज़ों के तहत कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एंड आप ये पूछ सकते हो कि यू नो अल्लाह, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, बट बिकॉज उसकी एसेंस ये है कि अल्लाह ताला आपने एहराम जो है, अगर वो हुदूद हरम ही हो जाता तो ईजी हो जाता था सीन, लेकिन हुदूद हरम तो बहुत करीब जाकर है ना, कि बस ठीक है यार, मक्का होटल भी बाहर लेके ना, तो 15 को मिनट पहले बंदा एहराम पहन के जल्दी से चला जाता, तो अल्लाह चिल ना हो, या अल्लाह कैसे कि अल्लाह वो मस्जिद हरम ही बस होती कि होटल से आराम से जाके लैंड करके जो है ना पहन ले, तो उम्रा तो तब भी अच्छा हो जाता। बट अल्लाह चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा जो है ना, मैं और आपको मुशक्क़त करें, को मुजाहिदा करें, क्योंकि मुशक्क़त से ही समझ आती है सारा कुछ, बग़ैर मुशक्क़त के नहीं समझ आती है। अब वो पूरी दुनिया असल में जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ना, मुशक्क़त ख़त्म करने की एफ़र्ट है। आज हमारी तरक्की का गोल ही है कि हर चीज़ में से मुशक्क़त ख़त्म कर दो। अब वो जब मुशक्क़त ख़त्म कर देते हैं तो फिर मेरे आपके जैसे मम्मी डैडी लोग रह जाते हैं, जिनसे भी कुछ भी नहीं होता हर एतबार से। सो वो इस्लाम एक्चुअली बिल्ट ही मुशक्क़त पे था, क्योंकि यहाँ मुशक्क़त करोगे तो आखिरत में फिर असल जो है ना वो मिलेगा। एंड बाय द वे, दुनिया में जो ज़ी सिफ़ात लोग हैं वो भी मुशक्क़त से बनते हैं। आप देख लीजिए, जितने आपके आर्मी में असल मुजाहिद हैं, वो किसी भी फ़ौज के लोग हों, जो सही कॉम्बैट में जिनको लड़ना आता है, बड़ी मुशक्क़त से ट्रेनिंग होती है उनकी, राइट।
सो दीन के ना उस सहाबा की ट्रेनिंग में वो चीज़ क्या कहते हैं एम्बेडेड थी, राइट। सहाबा की ट्रेनिंग में क्या कहते हैं वो चीज़ एम्बेडेड थी। अब खैर क्या होता है कि इस पे खैर बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारी क्या कहते हैं जो है ना मुख्तलिफ हुए हैं, मैं बहुत इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, बट जब मुसलमान निकल पड़ते हैं, राइट, तो कुरैश को जो है पता चल जाता है, राइट। एंड कुरैश के लिए ऑब्वियसली 2-3 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि कुरैश के लिए दिस इज़ एन इशू बिकॉज वो अभी एक जंग हार कर आए हैं, एंड ऑल्दो दे आर हियरिंग मिक्स्ड न्यूज़ अबाउट व्हाई द मुस्लिम्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स देम, बट जैसे कहते हैं ना उनको अपना रोला पड़ा हुआ है कि 1500 men are now marching towards them. Also understand, up till this point, for them this is the first time that the Muslims are marching towards them. अभी तक they had always marched. तो याद रखो, चाहे वो unarmed है, एक मुसलमान का रोब होता है. You know, they just don't know. I mean, they're genuinely, a part of them are genuinely scared, right, in terms of what is happening. So as a first response, right, amongst other, what they do is this, they send 200 men, headed by Khalid al-Walid, right, कि इनको जाके इंटरसेप्ट करके पीछे कहीं रोक देना, ठीक है। However, खैर that doesn't happen. कोई भी किसी भी किस्म की क्या कहते हैं जो है ना जंग होती नहीं, राइट। नेगोशिएशन होती है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट होता क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हुदैबिया के करीब पहुँचते हैं, आप में से किसी को अंदाज़ा है हुदैबिया कितना दूर है मक्का से? How far is Hudaybiyah from Makkah Mukarramah? Hudaybiyah is not that far away. Yeah, so actually from the city back then, the max you can argue is about 30 minutes. Right? That's how close you were. Just understand, right? Because अभी जब ये जो अब मक्का में टूर्स नहीं करवाए जा रहे होते किस्वा फैक्ट्री के, जो कि फ्रॉड ही है वैसे सम ऑफ देम, ठीक है, बट उसमें एक ज़ियारत ये है कि वो आपको हुदैबिया लेके जाते हैं जहाँ वो ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो it's that close. It's very near to the city. So finally the Muslims actually reach Hudaybiyah, ठीक है, which is the edge of the sacred sanctuary. यानी हुदूद हरम से बिल्कुल करीब है, ठीक है। So one is मीकात, one is हुदूद हरम, ठीक है। तो आप समझो कि बिल्कुल हुदूद हरम के उस पे जो है आगे। अब उस ज़माने में ऑब्वियसली शहर बहुत छोटा था, अभी आज तो ये हो गया ना कि शहर भी इससे बाहर आ चुका हुआ है, ठीक है। तो सिटी एक्चुअली इज एक्सपैंडेड टू सच अ ग्रेट डिग्री कि वो होता ही पता ही नहीं चलता। एंड वो रुकते वहाँ कैसे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी है वो रुक जाती है, एंड इट फेल्स टू मूव, राइट, इट जस्ट स्टॉप्स, एंड द सहाबा ट्राई एंड मूव इट, एंड देन दे से दैट लाइक यू नो इट्स बीइंग स्टबर्न, एंड द प्रॉफेट सेज दैट इट्स नॉट बीइंग स्टबर्न, राइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड इट स्टॉप, राइट। अल्लाह की तरफ से ये इशारा है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ व्हेन दे कैंप देयर, तो अगेन यू नो वन थिंग दैट यू विल सी टाइम एंड अगेन कि दे आर शॉर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर डेज एंड ऑब्वियसली दे आर टायर्ड। इससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी। इनको होस्ट करने वाला जो कबीला था वो बनु खुज़ा था, बनु खुज़ा, राइट। दे वर द वंस सपोर्टिंग इन हेल्पिंग इन नेगोशिएशन, राइट, बट अभी तक नेगोशिएशंस हो नहीं सक रही थी। तो एक सहाबी आके अल्लाह के नबी को कहते हैं कि यू नो द वेल इज़ ड्राई, जो कुआं है ना वहाँ का, उसमें हार्डली कोई पानी है। एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि जितना पानी ला सकते हो जस्ट ब्रिंग दैट वाटर, ठीक है। एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजेस दैट वाटर, ही मेक्स वुज़ू, ही रिंसेस, राइट, एंड ही सॉर्ट ऑफ पुट्स द वाटर बैक इन। तो अपना इस्तेमाल शुदा पानी जो है अल्लाह के नबी वापस डालते हैं, एंड देन बेसिकली व्हाट ही डज इज दिस कि वो पानी जो है वापस डाल दिया जाता है और एक तीर मारा जाता है, and the water fills to the brim, right, which is obviously a mu'jiza, ठीक है, it's something that is there, and the Sahaba and everybody sort of, you know, they quench their thirst and the water still stays, right. And by the way, you know, it's ajeeb because when this happens, so guess who's with them on the journey? Abdullah bin Ubay. अच्छा, by the way, Abdullah bin Ubay is अजीब आदमी, मुझे हमेशा सोचता हूँ ये बदबख्त जान भी नहीं छोड़ता, you know, he's a munafiq, he's the worst person on the earth, and he's always there. Like literally he's always, एक होता है ना कि मुनाफिक है और अपने काम से काम रख रहा है कि बंद रहता है, तो his presence is like a disaster because you know you've got a man, ठीक है, जो आपको चेक करने आया हुआ, ठीक है, and you can't throw him out, but the hilm of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is ajeeb that he would let him be, ajeeb he would let him be, ठीक है। So you know one of the companions, and ये वो वाहिद आदमी है जो खुला मुनाफिक है, like इसके बारे में पता ही है सबको कि कैसे, बाकियों का तो नाम पोशीदा है, राइट, ये बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। तो one of the Sahaba actually says to him that you know कितने और मौजज़े देखोगे before you truly accept Islam, ठीक है। and you know he says कि मैंने इससे पहले भी बड़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, almost like in arrogance, right, and you know the Sahabi becomes so angry, ठीक है,
he goes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and says that, you know, he's disrespected you saying this, right? And the Prophet calls on him and he's asked, you know, tell us कि पहले तुमने कहाँ ये मौजज़ा देखा है, ठीक है? Where have you seen this? Let us, ठीक है? And you know, जैसे कि इतना उस पर रोप पड़ता है, he says नहीं मैंने कहीं भी नहीं देखा, ठीक है? So why were you saying so? So he apologizes to the Prophet. So it's right कि he'll embarrass himself, ठीक है? Every now and then, he'll embarrass himself every now and then. But you know, वैसे by the way, speaking about Abdullah ibn Ubay, and we do stories that he is the man who slandered Aisha radhiyallahu ta'ala. And it's ajib that the Prophet still let him be. Halanki that day, by the way, the Prophet had initially said, who will rid me of this man, right? But then he just manages to get through, right? And eventually he will die of a natural death. But just understand कि कितना जो है ना बदबख्त आदमी है. And you know, the notion of Abdullah bin Ubay being with the Prophet in all these years is perhaps a reminder for all of us कि when we do the work of deen, अंडरस्टैंड कि हमारे इर्द गिर्द हर बंदा हमारी पसंद का नहीं होगा, हमारी टीम में, हमारे लोगों में, एंड हर एक को अपनी अथॉरिटी यूज़ करके बाहर फेंक देना इज़ नॉट द सोल्यूशन. हर स्टूडेंट आपकी पसंद का नहीं होगा, बर्दाश्त करना पड़ता है ना, हम कर ही रहे हैं ना, राइट? एंड हर टीचर भी आपकी पसंद का नहीं होगा, आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज़ लाइफ, राइट? यू नो कि यू हैव टू, एंड ये तो हम खैर यहाँ तो फिर भी लोग सिंसियर हैं. आप सोचो कि हम यू टॉक अबाउट a man जिससे ज़्यादा बदबख्त आदमी कोई भी नहीं है, and still the Prophet sallallahu alaihi wasallam would let him be. जी. Yeah. When they left for the Umrah, did they inform the Makkans कि हम आ रहे हैं, या फिर it was just like एक immediate फैसला? So initially when they left, they did not inform, ठीक है? But when they sort of reached the middle, ठीक है, and they realized कि मक्के वाले जो है ना परेशान हो रहे हैं, तो the Prophet sent somebody to mediate, ठीक है, and inform. But the Quraysh were not willing to accept that, ठीक है. They knew of the signs, and we're going to do some of that now. They were just not willing to. Now, why were they not willing to? Like I said, एक उन पे रोप था. Second, for them, you know, they brought in the ego issue as well. That, you know, how is it that एक लोगों से हमने अभी जंग हारी है, अब हम उनके 1500 लोगों को अंदर आने दें, ठीक है? How do we let this happen? देखो, इसको ऐसे समझो कि कुरैश, वक्त तेज़ी से गुजरता है ना इंसान, कि कुरैश की जो फ्रेश मेमोरी है ना, जंगों को भी निकाल दो, कि ये वो कौम है जिसने 13 साल अल्लाह के नबी और सहाबा को काबे में तवाफ़ नहीं करने दिया तमीज़ से. यानी 13 साल तक मुसलमान रातों को छुप के ही तवाफ़ करते रहे. तो वो आपको लगता है वो अलाउ कर देंगे कि 1500 बंदा जो है वो आए और तवाफ़ करके चला जाए? हालांकि क्लेम इनका क्या है कि ये अल्लाह का घर है, हम तो सिर्फ वी आर द खादिमैन ऑफ हरमैन शरीफैन, राइट? यही क्लेम है ना कि हम तो, बट दैट डजंट हैपन. दे आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन. सो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर देम दैट दिस कैन बी. सो दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस. कभी वो एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं. एंड एक्चुअली इसी से ही होगा कि अगर आप हुदैबिया को तफसील से पढ़े ना, जितने मीडिएटर्स आते हैं, इवेंचुअली द न्यूट्रल्स विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये मक्के वाले कर क्या रहे, यू नो, हाउ इज इट कि ये हरम में नहीं जाने दे रहे लोगों को, ये तो कभी आज तक नहीं हुआ, राइट? इट्स जस्ट अनफेयर. दे रियलाइजिंग कि यार, यू नो, द मुस्लिम्स वो कुछ भी नहीं करते. दे डोंट हैव वेपन्स, दे आर स्टैंडिंग इन ihram, दे आर सेइंग वी डोंट वांट टू फाइट, एंड येट दिस इज हैपनिंग, राइट? सो वो चीज़ जो है, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मक्के वाले इसीलिए एक शख्स को भेजते हैं, मुझे नाम उसका भूल रहा है, who basically comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he says to the Prophet, let me pull out his name actually. He says to the Prophet, you know, he tries to inquire the Prophet of his intention, his niyyah, right? So the first man to act as a mediator was Budayl ibn Waraka. Okay, so Budayl कौन है? He's from Banu Khuza, so he's a neutral, right? So अब क्या होता है कि he had just come, ठीक है, from Makkah actually, ठीक है. So he goes to the Prophet. He says that, you know, Muhammad, there are people on that side who are armored and waiting to fight you. ठीक है? So I want to ask you, you know, I want this fight to be avoided. So I want to ask you कि आप, you know, किस नियत से आए? What are you thinking, right? Because I want to sort of, क्या कहते हैं, because they won't let you enter the haram. So the Prophet responds by saying, we did not come to fight, rather we have come to show honor to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? This is also very interesting, you know, the response of the Prophet. Why is he not saying we've come to do Umrah? Because there's no such thing as Umrah for them. The Prophet is using language that they would understand.
He's saying we've come to honor the house of Allah, which was customary. People would come in the day, ठीक है, and do whatever they had to do अपने लात उज़्ज़ा इनके साथ वो, saying that they are honoring the house of Allah. So the Prophet is saying the same thing, that we've come to honor the house of Allah subhanahu wa ta'ala, ठीक है, which obviously in their way was to perform Umrah. Indeed, ठीक है, war has hurt the Quraysh, and if they wish, we can negotiate peace, right? That we are here to negotiate peace. But he says, if they wish, ठीक है, I swear by the one in whose hand is my soul, I will not show them what I will show them what we are capable of, and we will fight until my head is separated from my neck and Allah decides the matter. यानी नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि do not think कि अगर वो लड़ेंगे तो हम जो है ना पीछे हटेंगे, then we will fight to the last drop of our blood. Why is he saying this? Just to make a point कि हम कमज़ोर नहीं, right? We have no intent to fight, but if they will push us down, then we will fight. ठीक है? And he then said कि if this is too hard for the Quraysh, what we can do is this. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि कुरैश को जाकर कहो कि वो शहर को ना छोड़ दें. शहर को छोड़ने से मतलब ये था कि जो सामने के लोग हैं ना वो चले जाएं, ठीक है, एंड हम आएंगे, हम अपना तवाफ़ करेंगे, अपना उम्रा करेंगे, एंड देन वी विल लीव, राइट, सो दैट दे डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ फील द ऑकवर्डनेस ऑफ इट. अब बुदैल ये सुनता है, नहीं रियलाइजेस कि यार इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट दे आर सेइंग, बड़ी रीजनेबल बात है, ठीक है. सो ही बेसिकली सॉर्ट ऑफ गोज राइट एंड सॉर्ट ऑफ गोज टू मीडिएट ऑन द अदर साइड, ठीक है, एंड बेसिकली he is told that we have no reason to listen to you, you have nothing new to tell us. कुरैश इनको ये जवाब देते हैं, ठीक है. बट उनमें जो बेहतर लोग थे ना कुरैश में, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं let him speak and tell us what you have to say, ठीक है. बुदैल क्या कहता है? बुदैल कहता है, ओ कुरैश, you are being hasty with this man, he has come not to fight you, he has come to visit the house honoring its sanctity, ठीक है. But the Quraysh say, what, by Allah we will not allow him to enter Makkah, while the Arabs say that he had the better hand over us. So the issue is the same कि लोग क्या कहेंगे कि हमने इनको एंटर करने दे दिया, राइट. तो वो चीज़ है, राइट. अच्छा, ये आप वैसे हमेशा देखो कि एक सच्चे मुसलमान और एक शख्स जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती ना, और ये हमें अपने लिए सोचना है कि मुसलमानों को कोई परवाह नहीं होती थी लोग क्या कहेंगे. एक मुसलमान को सिर्फ यही फिक्र होती है अल्लाह क्या सोच रहे हैं. एंड हमें से जो कमज़ोर ईमान वाले ना, हमारी आधी ज़िंदगी इसी टेंशन में गुजरती है लोग क्या कहेंगे. हम ऑल ऑफ अस लाइक दैट. तो कुरैश की ईगो ही टोटल उनका मसला है कि दूसरे कबीले क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, एंड द मुस्लिम्स डोंट केयर, राइट. और एसेंशियली दैट्स व्हाट ही इज सेइंग एज वेल कि हरम से किसी को रोकना जो है ना वो है. एंड ही कोट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ही सेज दैट कि ये इतनी बड़ी डिटरेंट थी कि इट वाज पार्ट ऑफ द अरब कस्टम दैट अ मैन वुड सी his father's killer performing the तवाफ़, ठीक है, कि हरम ऐसा होता था कि आप तवाफ़ करते हुए अपने बाप के कातिल को देख रहे हो, बट यू कुड नॉट टच हिम. कि सबको ये पता था कि यार ये एक ऐसी जगह है, ठीक है, इसकी सैंक्टिटी ऐसी है कि यहाँ ना किसी को रोका जाता है ना किसी से बदला लिया जाता है. तो कुरैश को, मुसलमानों को रोकना जो है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड था हिस्ट्री में, ठीक है, ये अनप्रेसिडेंटेड था, ठीक है. इसी तरह उर्वा इब्न मसूद जो है ना वो फिर वॉलंटियर करते हैं, ठीक है, कि कुरैश को कह के यार मुझे मीडिएट करने दो. एंड वो कुरैश को बेसिकली वर्गलाता है कि यार क्या यानी कि क्या मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, क्या तुम में से कुछ का बड़ा कुछ का छोटा नहीं हूँ, हैव यू फॉरगॉटन ऑल ऑफ दैट. एंड द कुरैश फाइनली एक्चुअली एग्री कि ठीक है, यू रिप्रेजेंटेड अस इन द मीडिएशन, ठीक है. एंड ही गोज टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जो है ना क्या कहते हैं, उसको भी यही बात कहते हैं, ठीक है. सो ही सेज, ओ मोहम्मद, you say you are calling to Allah, but then you come with a group of unknown people. Now he's referring to what? The Ansar, right? You break the ties of kinship. वही पुरानी बात है ना. You break the ties of kinship, violate the sanctity of the haram, and intend to spill blood. So he's giving ilzams to the Prophet that has not happened. So the Prophet refuted his claims, and he says, I've only come to fulfill the ties of kinship. I've come to change their religion. I've come to change their religion for the better one, and to make their lives better. Okay? So then he says, Urwa says, O Muhammad, if you attack them, have you heard of anyone destroying their own tribe before you? And if they attack you, then by Allah, I do not see dignified men around you. So they seem to be a medley of different bandits, and this will... So he's trying to, discourage the Prophet, okay, off of this, and he's basically कर क्या रहा है वो
रसूलुल्लाह कहने की कोशिश कर रहा है कि कि अगर तुम हमला करोगे ना इन पे तो व्हाट अ मिजरेबल थिंग कि तुम अपने कबीले के लोगों को मार रहे हो, एंड अगर वो तुम पे हमला करेंगे व्हाट डिड ही से कि तो तुम्हारे पास तो कोई ढंग के बंदे ही नहीं है. तो ही इज नॉट बीइंग फेयर, ही इज इंसल्टिंग द प्रॉफेट एंड दिस इज द फेमस पॉइंट. ठीक है कि अ मैन फ्रॉम बिहाइंड शाउट्स, ठीक है, टू दिस मैन उर्वा बिन मसूद को क्या कहा जाता है, ठीक है, सक द क्लेटर of Allat. So despicable abuse, right? Which was not done by the Muslims, right? And he says, who was this? And he says, the son of Abu Quhafa, Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr, who was the calmest person in the entire seerah, right? जो कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे, he loses it to a degree that he stands up and abuses this man, that enough of the fact कि आप हमारे नबी को और हमारे लोगों को जो है जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड यहाँ से लोग दलील पकड़ते हैं कि दीन के लिए गाली भी दी जा सकती है, ठीक है. Yeah, I'm just telling you that they'll say, so yeah, I mean I don't agree to it, I mean we can't make this notion out of it कि भाई हर वक्त हम गालियाँ देते नहीं हैं, but there are one or two incidents and this is one of them, ठीक है. And he says something very interesting to Abu Bakr. Urwa क्या कहता है, that if I did not still owe you a favor I would have responded in kind. ठीक है कि अबू बकर को कह रहा है कि तुमने मेरे पे एक वक्त में एक एहसान किया हुआ था, तो हेंस मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, राइट. सो ये है. सो यू कैन ऑलमोस्ट सेंस कि इस वक्त जो है ना सिचुएशन कितनी गर्म होती जा रही है. अच्छा, एक और चीज़ क्या होती थी कि उस वक्त कस्टमरी ये होता था कि जब आप बात कर रहे होते, सो उर्वा बिन मसूद एंड द प्रॉफिट आर सिटिंग लाइक फेस टू फेस, वेरी क्लोज. सो उर्वा जो है एक ताल्लुक भी है ना पुराना, ठीक है, हालांकि इसे he would try and hold the beard of the Prophet, right, every now and then. And अरब में ना ये आज भी आप कहें कि कभी प्यार से भी दाढ़ी पकड़ी जाती है कभी किसी की, क्या कहने के क्या तुम्हें अल्लाह का वास्ता है. And every time he would do this, ठीक है, somebody would blow his hand, ठीक है, कोई इसके हाथ पे मारता था कि put your hand away, कि अपना नजस हाथ जो है ना just put it away, right, don't do this, ठीक है. And then what happened, ठीक है, कि finally one of the guards, ठीक है, he essentially sort of जोर से उसका हाथ दूर किया, and he said to him, get your hand away from the prophet before it is cut off from its owner, कि इससे पहले कि तुम्हारा हाथ. and उर्वा जो है ना गुस्से से कहता है that who is this, ठीक है, the man was masked, ठीक है, and he finds out who is it, this is मुगीरा ibn शोबा जो इसका अपना भतीजा था, ठीक है. so just understand, what would you say to your own nephew, and this notion, because Urwa stayed here for quite some time, कि नहीं उसको वो सहाबा को भी देख रहे हैं ना, द सहाबा और एवरीबडी इज प्रेजेंट. ये कोई बंद कमरे में नेगोशिएशन हो नहीं रही, ये कॉन्वर्सेशन हो नहीं रही, अब बीच में नमाज का वक्त भी आता है, सब होता है. सो दिस इज अ लॉन्गर नेगोशिएशन, ठीक है. नाउ लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट. उर्वा गोज बैक, ठीक है, एंड आई लव दिस, राइट. ही सेज, ओ पीपल, ही इज सेइंग दिस टू द कुरैश नाउ, I have visited kings and have entered the palaces of Caesar in Rome, the Khusro in Persia and the Negus in Abyssinia. Like he's saying, मैं बहुत बादशाहों के महलों में और जगहों पर गया हूँ, but wallahi, and by Allah, and they would believe in Allah with shirk, right? I have never seen any king shown more respect than the companions of Muhammad show to Muhammad, right? कि मैंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं है, right? And Sadaqa Rasulullah, this is the man that he was. And then he says, by Allah, he did not even spit except that one of them would catch it before it reaches the ground and rub it over his body. Right? Now that's not literally, they're saying it metaphorically that, everything that he was doing was essentially so dear to them, right? And he did not perform ablution. Now this is literal, except that they would fight with one another to catch the droplets of water that were falling off, right? If he commanded them to do something, he would simply raise his face and they would race to be the one chosen to fulfill the command. Kani ek baat wo kehte and the Sahaba would run, right? When he spoke, they lowered their faces before him, right? Ke ajeeb wo hai, and none of them would even look at his face directly out of shyness and veneration, right? तो वो क्या कह रहा है कि यार मत छेड़ो, देखिए मत छेड़ो इन लोगों को. And then he continued saying, if you wish the sword, then they will give you what you wish. अगर तुम लड़ना चाहते हो ना तो वो लड़ लेंगे तुम्हारे साथ, don't worry, ठीक है. And he says, I have seen a group that do not care about what happens to them if their companion यानी the prophet is harmed. कि अगर तुम्हें लग रहा है ना वो डर जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की.
by Allah, even their women amongst them, ठीक है, will never hand him over no matter the cost. Yeah. And take my advice. I fear that this house I fear that you will not be able to win over him, and besides he is the man who has come to this house wishing to honor it, bringing sacrificial animals, but is being denied and prevented, right? So he's saying that, don't stop him. मेरा मशवरा ये है, let these people go in. But the Quraysh essentially dismiss whatever Urwa had said and continue doing what they were doing. But it's so beautiful and powerful कि इत्तिबा जो है ना वो नज़र आती थी सहाबा से. And we've lost that. We don't have that, right? For the deen, वो जज्बा ही हमें नज़र नहीं आता अपने अंदर. And you read about this and it gives you the goosebumps 1400 years later कि यार ये क्या लोग थे, कि किस तरीके से जो है ना, because we don't understand how important body language is. And it was, the Sahaba didn't say anything to Urwa. It was just their body language actually that made Urwa give this speech. Right? And it truly were people who cared about Islam in this sense. Right? So that's something that we have to look at, we have to understand. Right? और फिर क्या होता है कि उसके बाद भी जो है ना essentially और negotiations करने की कोशिश की जाती हैं, but everything is coming to a fail. So finally the Prophet ﷺ decides to Send Umar bin Khattab. Okay? And when the Prophet ﷺ decides to send, इसके बीच में by the way 2 और messengers हैं, खिराश है और वो है Al-Hulais है, ठीक है, but I'm skipping past that so that we can get to the end of this as well. So when they decide to sort of send Umar bin Khattab, and this is interesting as well, Umar bin Khattab says to the Prophet, Ya Rasulullah, okay, don't send me, okay, because I do not have anyone from my tribe to protect me. Right? If you have to send somebody because the situation is so sad, you should send Usman. Okay? It's 2 interesting factors. Now sending somebody from the companions. अभी तक याद रखें जो लोग जा रहे थे ना, वो मुसलमानों के साथ नहीं आए हुए थे, वो इंटरमीडियरीज थे. ठीक है, अभी तक जो लोग बीच में जाके नेगोशिएशन कर रहे हैं वो किसी और कबीले का बंदा आके कह रहा है अच्छा मैं कर लेता हूँ, तो उसको पता है मेरी जान को कोई रिस्क नहीं. अब पहली दफ़ा क्या होने लगा है कि हमारे नबी कह रहे हैं कि अच्छा हम में से कोई बंदा जाता है. ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम उमर को कह रहे हैं और उमर कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुझे ना भेजें. एंड ही सेइंग मैं डरा हुआ नहीं हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग मोर स्ट्रेटेजिक. एंड लुक एट द ऑनेस्टी ऑफ उमर. ही डज नॉट केयर व्हाट द प्रॉफिट विल से. एंड आई मीन वी ऑल नो उमर वुड नॉट बी स्केयर्ड, बट वी आल्सो बाय द वे नो उमर हैज विजडम. To think that Umar never had wisdom, he has wisdom. He knows कि किसको कब भेजना है कब नहीं भेजना. ठीक है, बट वॉट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि हज़रत उस्मान नहीं हज़रत उमर को जाके कहते हैं कि यार तू अच्छा है तूने मुझे फंसा दिया. ठीक है, कि मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन, राइट. बट दे आर ऑल विलिंग टू डाई. एंड व्हाई? बिकॉज इफ आई हैव टू टेक सलाउद्दीन भाई's नेम और हसन's नेम और अब्दुल्ला's नेम, तो परहैप्स मैं सोचूंगा यार अच्छा इनमें से कौन नाराज़ होगा, कौन क्या सोचेगा, क्या करेगा, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि मोटिवेशन किसकी कितनी है अल्लाह के दीन के लिए. बट उमर बिन खत्ताब वेल न्यू, राइट, कि हम सब मर मिटेंगे. किसी का नाम भी ले लिया ना, जिस तरह नोएम बिन मसूद और अब्दुल्ला जब हज़रत उमर को बताते हैं अपनी बहन के इस्लाम के बारे में, ही डजंट हैव टू थिंक बिकॉज ही नोज ही विल नॉट माइंड, राइट, कि उनको पता होगा उनकी बहन को कि यार रसूल के लिए कुर्बानी दी जा रही है, दीन के लिए कुर्बानी दी जा रही है. सो अल्लाह के नबी मशवरा कबूल करते हैं. एंड सैयदना उस्मान जो है उनको भेजा जाता है. एंड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कज़न है अब्बान, ठीक है, वो बेसिकली उनको अमान देता है, उनको रिसीव करता है. एंड हज़रत उस्मान को अल्लाह के नबी एक और बात जो बड़ी अजीब है, ठीक है, वो एक और ताकीद ये देते हैं कि जब तुम जाओगे, अच्छा अब ये कोई घंटे की तो है नहीं ना, ये नहीं कि तुम उनको पता है कि 1-2 दिन रहेगा वहाँ वो, ठीक है, तो मक्के के वो लोग जो मुसलमान हो चुके हैं और उनका कोई भी नहीं है, उनको तसल्ली ज़रूर देना. ठीक है, ये बड़ी अजीब बात है. वन इट शोज़ टू यू द एम्पैथी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सेकेंड इट ऑल्सो शोज़ टू यू कि कभी कभी ना आप किसी को तसल्ली ही दे सकते, आप कुछ और नहीं दे सकते. एंड द प्रॉफिट नहीं, उनके लिए वो तसल्ली भी काफ़ी होगी उनको चलाने के लिए. व्हाट एन ऑनर दैट उस्मान इज कमिंग एंड टेलिंग यू दैट द प्रॉफिट रिमेंबर्स यू एंड ही इज सेइंग जस्ट स्टे इंटैक्ट, जस्ट डील विद द हार्डशिप एंड गुड टाइम्स विल कम, राइट. एंड फॉर सम ऑफ अस वो तसल्ली काफ़ी नहीं होती एक्चुअली. सो वो होता है. बट होता क्या है कि हज़रत उस्मान के आने में देर हो जाती है. एंड पहले एक र्यूमर पहुंचती है कि उनको मारा गया है, ज़ख्मी किया गया है, फिर एक र्यूमर पहुंचती है उनको मार दिया गया है.
फिर कंफर्म खबर आ जाती है कि उनको मार दिया गया है, राइट। एंड हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एंड इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे समझे ना, ही वुड से दैट इनफ इज इनफ। एंड द सहाबा कराम, ऑल ऑफ देम, every single one of them, other than one munafiq, they swear the alliance with the Prophet, which is the Bayt Rizwan, right? कि एक वादा लेते हैं, we will fight till the last drop of our blood, ठीक है, because this is unacceptable. We will essentially not now take this lightly. So much so कि हमारे नबी जो है अपना दूसरा हाथ रखते हैं उस सहाबा के हाथ पे, saying कि ये उस्मान के लिए हाथ है, ठीक है, this is for Usman रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Immediately the Quraysh find out, और वो पहला काम क्या करते हैं कि वो हज़रत उस्मान को जो है वापस भेज देते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब एक तरफ दे हम सहाबा का मकाम और वो चीज़ें पढ़ें, और आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, हम जब हज़रत उस्मान वापस आते हैं, he's come after a few days and you don't know what has happened, right? क्यों लेट हुए, क्यों नहीं। Somebody says, ठीक है, कि आप तो तवाफ़ कर आए होंगे, in this sense of sarcasm, right? You came so late. You perhaps did tawaf as well. And Sayyidina Usman is quick in reacting and saying that what an evil thought. And then he says, how dare you think that I would do tawaf when the Prophet had not done so. And he says कि wallahi अगर मुझे एक साल भी मक्के में रखा जाता ना, तो I would not have done the tawaf, right? Unless the Prophet sallallahu alaihi wasallam had first come in and commanded me to do so, right? So don't say that. So these are things that what it also tells you is this, कि इंसानों में भी खिचखिच रहती है कभी कभी, and that's okay, right? कि इस वाक़े को कोई बड़ा नहीं बनाता। तो हमारा है ना, हमारा कोई मसला हो जाए, हम ग्रज लेके 6 साल बैठे रहते हैं, ठीक है, ऊँट की तरह कीना लेके दिल में बैठे रहते हैं, तो हो गई एक बात, ख़त्म हो गई भी बात, ठीक है। अब क्या होता है कि खैर ऑब्वियसली बिकॉज कुरैश ने हज़रत उस्मान को तो भेजा है, बट अब उनको परेशानी भी है कि यार हमने गड़बड़ तो कर दी हुई थी। सो व्हाट इज़ इट दैट वी डू? सो व्हाट दे एसेंशियली डू इज़ दिस, कि they send somebody to sort of sign the pact of what is famously called as the Treaty of Hudaybiyah, ठीक है। So कौन साइन करने आता है कुरैश की तरफ से? Who knows the name? सुहेल इब्ने अमर, ठीक है। तो सुहेल इब्ने अमर जो है उसको भेजा जाता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो साइन करने के लिए। एंड वी ऑल फेमसली नो दैट मसला शुरू ही इस चीज़ से होता है कि सबसे पहले जो है ना सुहेल बिन अमर आकर क्या कहता है कि बेसिकली द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ डिक्टेटिंग, ठीक है, दैट हाउ इट विल बी रिटन, ठीक है। सो अंडरस्टैंड अभी क्या हो रहा है, एक ट्रीटी का ना प्रियम्बल है, ठीक है, एक वो है, फिर ट्रीटी की क्लॉजेस है, ठीक है। क्लॉजेस कौन डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवा रहे हैं। ही इज लाइक द कातिब हुज गेटिंग इट राइट। हु इज राइटिंग? अली बिन अबी तालिब। सो द प्रॉफेट इंस्ट्रक्ट्स सैयदना अली टू राइट, ठीक है, एंड ही इंस्ट्रक्ट्स हिम टू राइट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, राइट। एंड इसी पर जो है ना सुहेल अकड़ जाता है, एंड ही सेज वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, वी डोंट नो हु इज रहमान एंड रहीम, राइट, वी विल राइट व्हाट वी आर यूज्ड टू राइटिंग, बिस्मिकल्लाहुम्मा, ठीक है, बिस्मिकल्लाहुम्मा, इन द नेम, इन दाई नेम ओ गॉड, जो पहले भी इन्होंने लिखा था उस ट्रीटी पे, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखो, अगर रसूलुल्लाह यहाँ अड़ जाते कि नहीं ये नहीं लिखेंगे, तो फिर मैं तशरीह अलग करता, और अगर वो नहीं अड़े तो मैं तशरीह अलग करूँगा। मैं आपको वजह बताता हूँ, नॉट बिकॉज हम बिकॉज ये ना बहुत सब्जेक्टिव होता है, और ये आपको भी ज़िंदगी में आप ही जज होते हो कि आप हर जंग जीतेंगे या कुछ जंगें हार जाएंगे। कभी कभी मौके की मुनासबत से होता है। हो सकता है ऑन अ डिफरेंट डे इन अ डिफरेंट सर्कमस्टेंस द प्रॉफिट वुड हैव स्टॉप्ड एंड सेड, लाइक ऑब्वियसली इवन इन बिस्मिक अल्लाहुम्मा में कोई अल्लाह की तो तौहीन नहीं हो रही, बट अगर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस किसी पॉइंट पे शायद रसूलुल्लाह कहते हैं कि नहीं हम वही लिखेंगे जो हम लिखते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि शायद इस्लाम उस वक्त डोमिनेंट पैराडाइम, शायद एक बात तरबियत करना मकसद हो। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइजेस कि we are not in a position to fight in this, so he gives it up. And me and you will have these circumstances, and इसका कोई कतई जवाब कभी आपको नहीं मिल सकता। So ये होता है, and this is hard for Sayyidina Ali to take down, but it is the instruction of the Prophet, so he does it. The second is what, ठीक है, he says that you will write, because पहले कबीले लिखा जाता था कि ट्रीटी किन लोगों के दरमियान है। So he begins by saying that this is what Muhammad, ठीक है, the messenger of Allah, Rasulullah, has agreed with Suhail ibn Amr. And Suhail ibn Amr makes a very rational point. He says, what messenger of Allah?
अगर आपने को हमने रसूल अल्लाह मान लिया होता तो रोला ही ख़त्म हो जाता. तो you right, Muhammad bin Abdullah. Right? And for the Sahaba, it's like, belittling the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right? आप ऐसे समझो कि अगर कोई आज कह दे किसी उसमें कि नहीं मैं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँगा, आई विल जस्ट कीप कॉलिंग हिम मोहम्मद, तो हो सकता है वो तब के खड़ा हो जाए. नहीं कि भाई क्या मतलब है नहीं कहोगे, क्या मतलब है नहीं लिखोगे. ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ बहुत आसानी से हो सकता है. तो इसी तरह वो इस तरह की एक बात कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा. एंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि डू एज हैज बीन सेड. एंड दैट्स व्हेन सैयदना अली गिव्स अप द पेन. या रसूल अल्लाह, आई कैन डू दिस. ठीक है, आई जस्ट कैन नॉट डू दिस. ये नहीं हो रहा. अच्छा, मैं आई वांट यू टू स्टॉप हियर. एक हज़रत अली इधर है, फिर थोड़ी देर बाद हज़रत उमर होंगे जब वो इवेंचुअली ट्रीटी साइन हो जाएगी, और बाकी भी सहाबा का जो स्टेट है वो हमें पता है. अब रिवाइंड करो पीछे कि उर्वा बिन मसूद वहाँ क्या कह रहा था जाके कि मैंने आज तक ऐसे लोग देखे ही नहीं कि उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं एंड दे वुड डू एनी एंड एवरीथिंग. एंड इट्स लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीरा बज़ाहिरन दैट चेंजेस. Hazrat Ali refuses to write. Umar is going to be upset. The Prophet comes out and says, shave off your heads, nobody is moving. Okay? It should make you realize how disheartened are the Sahaba. Right? कि इतनी to and fro के बाद इतना लंबा सफ़र, इतना सारा कुछ, and they find out कि we signed a treaty जिसमें कोई चीज़ हमारी खैर फ़ायदे की नज़र ही नहीं आ रही. ठीक है? And we are not even doing Umrah this year. And and they disrespected our Prophet and nothing happened. And it's hard at times, right? And Allah subhanahu wa ta'ala आपको हालात से गुजारते हैं. And what is the treaty? Right? Now, when the treaty is signed, both parties agreed to a condition of a truce for 10 years. That's one clause. ठीक है? कि 10 साल के लिए दोनों के दरमियान अमान रहेगी. The second, कोई शख्स अगर मक्के से मदीने आएगा तो उसको वापस करना पड़ेगा. कोई मदीने से मक्का आएगा तो उसको वापस नहीं करना पड़ेगा. दिस इज डिजास्टर्स. यहाँ किस में कौन सी बराबरी है इसमें. देखिए फिर क्या था, बोथ द सिटीज आर फ्री टू मेक पैक्ट्स विद ईच अदर. ठीक है, द मुस्लिम्स विल नॉट परफॉर्म पिलग्रिमेज दिस ईयर, दे आर गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर एंड दे विल बी अलाउड बट ओनली फॉर 3 years. ठीक है, कोई वेपन्स अलाउड नहीं होंगे, कुछ वो नहीं होगा. सो दीज थिंग्स, राइट. सो बज़ाहिरन फॉर द मुस्लिम्स एवरीथिंग सीम टू बी आउट. द 10-year थिंग, सहाबा क्यों अपसेट थे? Why do we need a truce? Let's finish them off and ख़त्म करते. I mean, we have the upper hand. हम अभी ग़ज़वा अहज़ाब जीते. Why are we agreeing to the 10-year truce? The second one, मक्का मदीना वाली बात, right? Makes absolutely no sense. वो हमारे बंदे वापस नहीं करेंगे, हम उनके वापस करते रहेंगे. तीसरी चीज़ ये, हम उम्रा भी नहीं कर सक रहे. ठीक है. So they felt यार this makes no sense. बहरहाल ये ट्रीटी साइन हो जाती है. And again, as perhaps one of the biggest tests, ठीक है, ट्रीटी अभी यानी लिखी गई है, साइन हुई नहीं है. अबू जंदल कम्स इन, द सन ऑफ सुहेल इब्न अमर, एंड अल्लाह इज टेस्टिंग. ठीक है, एंड ही इज इन चेन्स एंड ही इज सेइंग कि ही इज कम टू द प्रॉफिट, या रसूलल्लाह, आई हैव हैड इनफ ऑफ टॉर्चर. एंड सुहेल सेज, यू आर नॉट टेकिंग हिम बैक. एंड कैन यू इमेजिन हाउ हार्ड इज इट फॉर द प्रॉफिट हिमसेल्फ, ठीक है, टू टेल दिस मैन दैट जस्ट गो बैक. अच्छा, एंड अबू जंदल डज नॉट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग, यू कुड आर्ग्यू. और एट बेस्ट उसको यही पता चल रहा है ना कि रसूलुल्लाह उसको क्या कह रहे हैं कि वी साइंड ए ट्रीटी जिसके तहत हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते. ही इज सेइंग यार मैं इधर जंजीरों में हूँ, ठीक है, मारें खा रहा हूँ, एंड मेरे नबी मुझे कह रहे हैं कि और सब्र करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता. हाँ, हम सोचे ना हमारे जैसा को होता हम अकड़े खड़े हो जाते, राइट. बट वेरी क्विकली विल सी दैट अबू जंदल एक्चुअली रन्स ऑफ एंड गोज टू अनदर एरिया. एंड सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो लोग मक्के से फिर मदीने जाते तो मदीने जाते ही नहीं थे, उन्होंने जाके एक और जगह बना ली और वहाँ रोक के ना काफिले लूटते थे. या सो इट इवेंचुअली देन केम टू अ पॉइंट कि दी अबू सुफियान हैड टू बेग द प्रॉफिट कि टेल योर पीपल टू स्टॉप. ठीक है, वी कैन डील विद दिस, ऑलरेडी यू वर इनफ, तो अब ये एक और अड्डा बन गया. ठीक है, सो दिस इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट. सो खैर फाइनली व्हेन द ट्रीटी इज साइंड, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स आउट and he says to the Sahaba that we will shave off our heads and we will sacrifice our animals and we will then sort of head back, and nobody moves. As you all know, we've spoken about that as well. Nobody moves, and the Prophet has never sort of seen this, right? And he goes in, and Salama says to the Prophet that perhaps, Ya Rasulullah, if you do it first, they will do it with you.
ठीक है, look at the wisdom of it, because what they, the best explanation of this is what, कि the Sahaba were not disrespecting the Prophet, they were just hoping that wahi would come down. कितनी दफ़ा तो हुआ था, me and you, हमारे पास, you know, हम आज वेट कर रहे होते ना कि कोई और मुफ्ती साहब आएंगे, गुंजाइश निकाल लेंगे. Just for the Sahaba, they were hoping maybe, you know, Allah subhanahu wa ta'ala sends down revelation, right, saying something different, right, maybe we get to go for Umrah, but you know, as Allah had willed, ठीक है, कि ये नहीं होगा, सही है. So, and you know, they say, and Umar bin Khattab is the most aggressive in this. So amongst other, right, he comes, ये अबू जंदल के वाक़ये के बिना सैयदना उमर रसूलुल्लाह के पास जाते हैं कि कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, ठीक है, aren't you the true messenger of God, aren't we on the right path, right, और क्या हमारे दुश्मन गलत नहीं है, ठीक है. Then you know, why are we suffering this humiliation? क्या आपने नहीं हमें कहा था कि हम उम्रा करेंगे? And the Prophet is the coolest man on the planet, right? He says, did I tell you we do it this year? ठीक है. So then he could have responded to Umar in a lot of senses, right? Umar, did I tell you we'll do it this year? ठीक है. So almost saying it in a you know, beautiful sense. And obviously Hazrat Umar को जो है ना बाद में he regrets the fact that, you know, he had done this, he had sort of been like this. So this is essentially, you know, the Treaty of Hudaybiyah. We'll stop here now and inshallah begin from this tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.